ویلکم بیک کا بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں ٹون میونسپل کارپوریشن مومن آباد کی جانب سے بنارس کے اطراف تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کمشنر کراچی اور ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر شہر میں تجاوزات کے خلاف جاری مہم کے سلسلے میں بنارس اور اس کے اطراف میں بھرپور ازداد تجاوزات آپریشن کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر آپریشن کی نگرانی کر رہے تھے، جبکہ ٹاؤن چیئرمین ملک عارف ایوان کی ہدایت پر مومن آباد ٹاؤن کا میونسپل کمشنر اصغر علی اور ٹاؤن انتظامیہ کے افسران و عملے نے کارروائی میں بھرپور معاونت کی۔ آپریشن کے دوران سڑکوں، فٹ پاتھ اور عوامی گزرگاہوں پر قائم تجاوزات کو بھاری مشینری کے ذریعے ہٹایا گیا، جبکہ عوامی راستوں میں رکاوٹ بننے والے غیر قانونی سامان اور تجاوزات کا خاتمہ کیا گیا۔ مومن آباد ٹاؤن انتظامیہ نے شہریوں تاجروں سے اپیل کی کہ وہ تجاوزات کے خاتمے کی مہم میں انتظامیہ سے تعاون کریں اور عوامی راستوں کو کشادہ رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں جشن آزادی کے موقع پر لیاری سے ابراہیم حیدری ٹاؤن تک شاندار ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں نوجوان اور سائیکل سواروں نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ جشن آزادی پاکستان کا سلسلے میں لیاری سے ابراہیم حیدری ٹاؤن تک ایک شاندار سائیکل ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں نوجوان سائیکل سواروں نے شرکت کی۔ ریلی میں شریک نوجوانوں نے قومی پرچم تھامے ہوئے پاکستان سے محبت اور قومی یکجہتی کا اظہار کیا۔ سائیکل ریلی کی قیادت ٹاؤن میونسپل کارپوریشن ابراہیم حیدری کے چیئرمین نذیر احمد بھٹو نے کی۔ ریلی مختلف شاہراہوں سے ہوتی ہوئی ابراہیم حیدری ٹاؤن پہنچی، جہاں شرکاء کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر ٹاؤن چیئرمین نذیر احمد بھٹو نے جشن آزادی کے جذبے سے سرشار سائیکل ریلی میں شریک نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے انہیں شیلڈز اور خصوصی تحائف پیش کیے۔ نذیر احمد بھٹو نے کہا، پاکستان ہماری پہچان، شان اور ہمارا مستقبل ہے۔ انہوں نے کہا، جشن آزادی محض ایک دن منانے کا نام نہیں، بلکہ یہ ہمیں اپنے وطن کی آزادی کے لیے دی گئی قربانیوں کو یاد کرنے اور ملک کی تعمیر و ترقی کے عزم کی تجدید کا موقع فراہم کرتا ہے۔ ریلی کے شرکاء نے پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے فضا کو گرما دیا۔ اس موقع پر ٹاؤن انتظامیہ، بلدیاتی نمائندگان، کارکنان اور شہریوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں ڈپٹی کمشنر ساؤتھ جاوید نبی کھوسو نے میونسپل کمشنر صدر ٹاؤن عمار خان کے ہمراہ پاکستان چوک ٹرائیکل پر صدر جانب سے تزئین و آرائش کے جاری کام کا تفصیلی جائزہ لیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ڈپٹی کمشنر ساؤتھ جاوید نبی کھوسو نے میونسپل کمشنر صدر ٹاؤن عمار خان کے ہمراہ پاکستان چوک ٹرائنگل پر صدر ٹاؤن کی جانب سے تزئین و آرائش کے جاری کام کا تفصیلی معائنہ کیا اور موقع پر کام کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر پارک صدر ٹاؤن سید فرحان بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر ساؤتھ جاوید نبی کھوسو نے جاری تزئین و آرائش کے کام کے مختلف مراحل کا معائنہ کیا اور متعلقہ افسران سے منصوبے کے حوالے سے بریفنگ حاصل کی۔ میونسپل کمشنر صدر ٹاؤن عمار خان نے ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کو جاری تزئین و آرائش کے کام کی پیش رفت اور عوامی سہولت کے لیے کیے جانے والے اقدامات سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر عمار خان نے اس عزم کا اظہار کیا کہ صدر ٹاؤن کی حدود میں جاری ترقیاتی منصوبوں کو معیار کے مطابق بروقت مکمل کرنے اور شہریوں کو بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں ممبر قومی اسمبلی شاہدہ رحمانی نے ٹاؤن چیئرمین حاجی جمیل ضیاء، ٹاؤن وائس چیئرمین افنان صغیر صدیقی کے ہمراہ پرچم کشائی کی تقریب میں شرکت بھی کی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن اورنگ ٹاؤن کی جانب سے ٹاؤن آفس میں پاکستان کا یوم آزادی کے موقع پر تقریب پرچم کشائی منعقد کی گئی۔ اس موقع پر ممبر قومی اسمبلی شاہدہ رحمانی نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، شاعر مشرق علامہ اقبال کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے اکابرین کی جہد مسلسل 14 اگست ہمیں ان عظیم لاکھوں قربانیوں کی یاد دلاتا ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا۔ آزادی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اس کی قدر اور حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس موقع پر شاہدہ رحمانی نے ٹاؤن چیئرمین حاجی جمیل ضیاء، وائس چیئرمین افوان صغیر صدیقی اور میونسپل کمشنر آغا فہد احمد کے ہمراہ پرچم کشائی کی۔ تقریب میں قومی ترانہ پڑھا گیا۔ تقریب میں UC 3 کے چیئرمین مقبول خان، UC 1 وائس چیئرمین شاہد کمال، اپوزیشن لیڈر زاہد اقبال، UC 4 کے وائس چیئرمین کرامت علی، وائس چیئرمین UC 5 سہیل خان، PTI اقلیتی کونسلر سنی کھوکر و دیگر منتخب بلدیاتی نمائندے، TMC اورنگی کے زیر انتظام چلنے والے اسکولز کے طلبہ و طالبات، اساتذہ کرام کے علاوہ بلدیاتی افسران، اسٹاف نے شرکت کی۔ تقریب میں TMC
کے اسکول کے بچوں نے ملی نغمے اور ٹیبلو پیش کیے. ممبر قومی اسمبلی شاہدہ رحمانی نے چیئرمین اورنگ ٹاؤن حاجی جمیل ضیاء، ٹاؤن وائس چیئرمین عفان صغیر صدیقی، میونسپل کمشنر آغا فہد احمد خان کے ہمراہ اساتذہ کرام اور اسکول کے بچوں کے ساتھ پاکستان کی جشن آزادی کا کیک کاٹا. ممبر قومی اسمبلی شاہدہ رحمانی، ٹاؤن چیئرمین حاجی جمیل ضیاء، ٹاؤن وائس چیئرمین عفان صغیر صدیقی اور میونسپل کمشنر آغا فہد احمد خان نے تقریب میں موجود شرکت طلبہ و طالبات، اساتذہ کرام، اہل اورنگی، اہل کراچی، اہل سندھ، پورے پاکستان کے علاوہ دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی بستے ہیں سب کو پاکستان کے 79ویں جشن آزادی کی مبارکباد دی. اس موقع پر ٹاؤن چیئرمین حاجی جمیل ضیاء نے کہا کہ آزادی کا جشن صرف چراغوں اور پرچے لہرانے کا نام نہیں بلکہ وطن سے وفاداری اور قومی ذمہ داری نبھانے کا عہد بھی ہے. ہمیں اپنے کردار اور عمل سے ثابت کرنا ہوگا کہ ہم پاکستان کی ترقی اور استحکام کے لیے متحد ہیں. ٹاؤن وائس چیئرمین عفان صغیر صدیقی نے کہا کہ آئیں ہم عہد کریں کہ اختلافات بلا کر وطن کی تعمیر اور ترقی کے لیے متحد ہو کر کام کریں گے. میونسپل کمشنر آغا فہد احمد خان نے اپنے دلفریب انداز میں گفتگو کرتے ہوئے تمام شرکاء کو لطف اندوز کیا اور تقریب کو چار چاند لگائے. ممبر قومی اسمبلی شاہدہ رحمانی، ٹاؤن چیئرمین حاجی جمیل ضیاء، ٹاؤن وائس چیئرمین عفان صغیر صدیقی اور میونسپل کمشنر آغا فہد نے طلبہ طالبات نے نقد انعامات تقسیم کیے. اختتام پر طلبہ طالبات اور شرکاء میں مٹھائی تقسیم کی گئی. خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں ٹاؤن چیئرمین اورنگی حاجی جمیل ضیاء نے کہا کہ پاکستان کا مستقبل نوجوانوں سے وابستہ ہے. نوجوان علم و ہنر، ماہر محنت، مثبت سوچ کو اپنا شعار بنا کر ملک کی ترقی کی منزلوں تک پہنچ سکتے ہیں. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں. چیئرمین اورنگ ٹاؤن جمیل ضیاء نے کہا ہے کہ پاکستان کا مستقبل ہمارے نوجوانوں سے وابستہ ہے. نوجوان علم، ہنر، محنت اور مثبت سوچ کو اپنا شعار بنا کر ملک کو ترقی کی نئی منزلوں تک پہنچا سکتے ہیں. مجھے خوشی ہے کہ آج کا نوجوان اپنے بزرگوں کی روایت کے مطابق جشن آزادی پاکستان بل وطنی اور جوش و جذبے کے ساتھ منا رہے ہیں. یہ بات ٹاؤن چیئرمین اورنگی حاجی جمیل ضیاء نے اورنگ ٹاؤن ڈسٹرکٹ ویسٹ میں سیاسی، سماجی، سول سوسائٹی، ٹریڈ ایسوسی ایشن اور نوجوانوں کی طرف سے جشن آزادی کے حوالے سے لگائے گئے کیمپوں کے دورے کے دوران کہی. ٹاؤن وائس چیئرمین و جنرل سیکرٹری پیپلز یوتھ ڈسٹرکٹ ویسٹ عفان صغیر صدیقی، پاکستان پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ ویسٹ کے سینئر نائب صدر صدیق اکبر، سیاسی، سماجی اور علاقائی معززین بھی ان کے ہمراہ تھے. ٹاؤن چیئرمین حاجی جمیل ضیاء نے انصاف ہیومن رائٹس آرگنائزیشن اورنگی کی جانب سے جشن آزادی کی تقریب میں شرکت کی. اورنگی ٹاؤن سے مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دینے والی شخصیات کو شیلڈ پیش کی اور ان کی حوصلہ افزائی کی. جشن آزادی فٹ بال ٹورنامنٹ کے فائنل میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور کھلاڑیوں ٹورنامنٹ انتظامیہ سے ملاقات کی. ٹورنامنٹ انتظامیہ اور علاقہ معززین نے مہمانوں کو روایتی پگڑی پہنائی. ٹاؤن چیئرمین حاجی جمیل ضیاء نے جیتنے والی ٹیم کو 25,000، رنر اپ ٹیم کو 10,000 اور ٹورنامنٹ انتظامیہ کو 50,000 نقد انعام دیے. انہوں نے سیکٹر 15 میں اورنگی ٹاؤن بنگلہ بازار میں وکلا برادری کی طرف سے لگائے گئے کیمپ میں شرکت کی اور جشن آزادی کا کیک کاٹا. اس کے علاوہ ٹاؤن چیئرمین حاجی جمیل ضیاء نے رات گئے تک مختلف کیمپوں کا دورہ کیا اور آتش بازی کا مظاہرہ دیکھا. چیئرمین جمیل ضیاء کا کہنا تھا، مجھے اپنی نوجوان نسل کو دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کی روایت کو آگے بڑھا رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ ویسٹ کے سینئر نائب صدر صدیق اکبر نے کہا کہ پاکستان لاکھوں جانوں کی قربانی کے بعد حاصل ہوا. نئی نسل کو چاہیے کہ وہ آزادی کی قدر کرے. ٹاؤن وائس چیئرمین عفان صغیر صدیقی نے کہا کہ نوجوان نسل پاکستان کا مستقبل ہے، وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمان کے مطابق تعلیم حاصل کریں. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھیں اور بات کریں ماڈل ٹاؤن کی جانب سے یوم آزادی کے موقع پر تقریب پرچم کشائی کا انعقاد کیا گیا. قائم مقام چیئرمین فیصل باسط نے پرچم کشائی کی. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں. ماڈل ٹاؤن کی جانب سے رنگا رنگ جشن آزادی پروگرام کا انعقاد کیا گیا. قائم مقام چیئرمین فیصل باسط، ضلع امیر اور ایجوکیشن ڈائریکٹر و افسران نے خصوصی شرکت کی. جشن آزادی کے حوالے سے تقریب میں بچوں نے ٹیبلو پیش کیے. ٹیبلو اور ملی نغموں سے بچوں نے خوبصورت پرفارمنس پر داد وصول کی. ٹیبلو اور ملی نغموں نے تقریب کو خوبصورت بنا دیا. اس موقع پر قائم مقام چیئرمین فیصل باسط کا کہنا تھا کہ یہ جشن آزادی ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. آج اس شب کو ہم جشن آزادی کے طور پہ منا رہے ہیں. بلا شبہ یہ تجدید عہد کا بھی دن ہے. اس ملک کے ساتھ وفاداری کا، اس ملک کی تعمیر کا، اس ملک کی ترقی کا ہم سب عہد کرتے ہیں. یہ بچے، یہ بڑے، یہ بزرگ، یہ جوان سب جو ہیں آج اس تجدید عہد کے موقع پر موجود ہیں اور ملک کی خدمت، ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جان دینے کے عزم کے ساتھ یہاں موجود ہیں. پوری تمام کی تمام ماڈل ٹاؤن کی یوسیز میں آج یہ تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے. آج 79ویں ہم انشاءاللہ پاکستان کی سالگرہ منا رہے ہیں کہ اس کا پاکستان جس دن بنا تھا. پوری قوم آج میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں، ننے منے بچوں کو، اور ہر گلی محلے کے اندر اسی طرح کے آپ کو تقریبات نظر آئیں گی. خاص طور پہ میں ماڈل ٹاؤن کے چیئرمین صاحب کا اور ڈائریکٹر ندیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اتنی خوبصورت تقریب آج منعقد کی
जश्न आज़ादी के हवाले से जिन बच्चों ने A1 ग्रेड लिए उनको भी आज ये शील्ड दे रहे हैं। तो इसलिए मैं दोनों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज हमारी हर यूसी के अंदर, इस पूरे टाउन के अंदर कहीं ना कहीं तकरीब हो रही है। आज अल्हम्दुलिल्लाह कहीं परचम कुशाई हो रही है, कल टाउन के अंदर भी परचम कुशाई होगी। बस इस मौके पे मैं सारी कौम को एक बार फिर मुबारकबाद देना चाहता हूँ। खबर शामिल करें और आपको बताएं, मोमिनाबाद यूसी 6 की जानिब से योमी आज़ादी का इनेकाद किया गया। यूसी चेयरमैन सिराजुद्दीन यूसुफज़ई ने परचम कुशाई की। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। डिप्टी पार्लिमानी लीडर बल्दी अज़मा कराची व चेयरमैन यूनियन कौंसिल 6 सलाउद्दीन यूसुफज़ई की ख़ुसूसी हिदायत पर यूनियन कमेटी 6 में यौम आज़ादी पाकिस्तान के मौके पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें चेयरमैन यूसी 6 सलाउद्दीन यूसुफज़ई ने परचम कुशाई की। तकरीब में यूनियन कमेटी के मौजूदीन, बल्दियाती नुमाइंदगान, कारकुनान, इलाका मकीनों, बच्चों और नौजवानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब के दौरान बच्चों ने खूबसूरत टेबलोज और मिली नगमे पेश किए। चेयरमैन यूसी 6 सलाउद्दीन यूसुफज़ई ने कहा कि पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों की अजीम कुर्बानी और जद्दोजहद का समर है। आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है और हमें इस नेमत की कदर करते हुए अपने मुल्क की तरक्की, खुशहाली और इस्तेकाम के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। तकरीब के इख्तिताम पर पाकिस्तान की सलामती, तरक्की, खुशहाली और इस्तेकाम के लिए खसूसी दुआ की गई, जबकि शरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों से अपने वतन अजीज से मोहब्बत का इजहार किया। खबर शामिल करें और आपको बताएं, शाह फैसल टाउन में पाकिस्तान की जश्न आज़ादी की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। परचम कुशाई की गई और पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और इस्तेकाम के लिए दुआ की गई। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। शाह फैसल टाउन में 14 अगस्त 2026 के हवाले से पाकिस्तान के 79वें यौम आज़ादी की पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर खटक ने परचम कुशाई की। टाउन चेयरमैन शाह फैसल गौहर अली खटक का कहना था, आज़ादी का जश्न सिर्फ चिराग और परचम लहराने का नाम नहीं, बल्कि वतन से वफादारी और कौमी जिम्मेदारी निभाने का अहद भी है। यौम आज़ादी के मौके पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान अल्लाह ताला की अजीम नेमत है, हमें इसकी तरक्की, खुशहाली और इस्तेकाम के लिए मुत्तहद होकर अपना किरदार अदा करना चाहिए। तकरीब में शाह फैसल टाउन के अफसरान, साज़ा कराम, TMC, शाह फैसल टाउन के मातहत चलने वाले स्कूल के तलबा और तालबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पूरी पाकिस्तानी कौम को, हमारी माँ, बहनों, बुजुर्गों, बच्चों को पाकिस्तान की 79 जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। शाह फैसल टाउन की तरफ से, शाह फैसल टाउन की इंतज़ामिया की तरफ से पूरे पाकिस्तान को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और साथ ही साथ दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को अजीम इस्लामी एटमी मुल्क बनाए और पाकिस्तान को अल्लाह ताला बैरूनी और अंदरूनी जो चैलेंज है उससे कामयाबी से निकाले। और इंशाल्लाह पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है, अल्लाह के नाम पे बना है, ये ता क़यामत रहेगा और पूरी दुनिया में सितारे की तरह चमकता दमकता रहेगा इंशाल्लाह। और नौजवान नस्ल के लिए मैसेज ये है कि आप अपनी मेहनत करें और तालीम हासिल करें और पाकिस्तान की जिम्मेदारी अब आप लोगों के कांधों पे है। इंशाल्लाह इस पाकिस्तान को अब आप लोगों ने आगे लेके जाना है और इंशाल्लाह पाकिस्तान ने आगे जाना है और पूरी दुनिया में जिस तरह इस वक्त चमक रहा है इस तरह चमकता रहेगा। खबर शामिल करें और आपको बताएं, चेयरमैन कुरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख की ज़ेर निगरानी जश्न आज़ादी के सिलसिले में एक निहायत पुरवकार, शानदार और मिली जज्बे से भरपूर तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। चेयरमैन नईम शेख ने कहा कि आज़ादी एक अजीम नेमत है और पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों की बेमिसाल जद्दोजहद, कुर्बानियों और लाजवाल अज़्म का समर है। तकरीब के दौरान शरका ने इस अज़्म का इज़हार किया कि वह पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी ईमानदारी और खुलूस के साथ अदा करेंगे। पुरवकार, शानदार और मिली जज्बे से भरपूर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें PS 92 की ख़वातीन विंग की सदर निदा नाज समेत तालबात, असातिज़ा, प्रोग्राम के मुंतज़मिन, डायरेक्टर IT शुजात हुसैन समेत टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कुरंगी के अफसरान और मुलाजमीन ने भरपूर शिरकत की। तकरीब के आगाज पर चेयरमैन कुरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख की आमद पर स्कूल की तालबात ने नया जोश और जज्बे और वालाना अंदाज में उनका इस्तकबाल किया। तालबात ने बैंड बाजी के खूबसूरत धुनों के साथ चेयरमैन कुरंगी टाउन को खुश आमदीद कहा। अगेन नन्ही तालबात ने फूलों का तोहफा पेश करके अपने मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया। तकरीब के दौरान तालबात ने कौमी नगमों और मिल तरानों पर खूबसूरत टेबलोज, शानदार परफॉर्मेंस पेश की। चेयरमैन कुरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने तालबात की जानिब से पेश किए जाने वाले टेबलोज पर शानदार परफॉर्मेंस को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल
मुस्तकबिल हमारी नौजवान नस्ल से वाबस्ता है और बच्चों में हुब्बुल वतनी, तालीम, हुनर और मुस्बित सोच को फरोग देना वक्त की अहम ज़रूरत है। तकरीब के दौरान पाकिस्तान की आज़ादी की मुनासबत से खसूसी परचम कुशाई की तकरीब भी मुनक़िद की गई। चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने कौमी परचम लहराया तो शरका ने एहतराम के साथ कौमी परचम को सलाम पेश किया। परचम कुशाई के बाद कौमी तराना पेश किया गया। परचम कुशाई के बाद चेयरमैन कोरंगी टाउन नईम शेख ने असातिज़ा, तलबात और प्रोग्राम के मुतज़म्मिन के साथ मिलकर केक काटा। खबर शामिल करें और आपको बताएं, जश्न आज़ादी के मौका पर मलीटोर में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में 79वें योम आज़ादी के मौके पर मली टाउन के मरकजी दफ्तर में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें चेयरमैन मली टाउन जान मोहम्मद बलोच और म्यूनसिपल कमिश्नर आगा समीर खान दुर्रानी ने अरकान कौंसल, बल्दिया अफसरान और मुलाजमीन के हमरा परचम कुशाई की। तकरीब के मौके पर कौमी परचम बुलंद किया गया और मुल्क और कौम की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खसूसी दुआ की गई। बाद जश्न आज़ादी की खुशी में केक भी काटा गया। इस मौके पर चेयरमैन मली टाउन जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि आज़ादी अल्लाह ताला की अजीम नेमत है, जिसकी हिफाजत और मुल्क की तरक्की के लिए हम सबको अपना भरपूर किरदार अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों की लाजवाल कुर्बानियों का समर है और हमें इत्तेहाद, नज़्म-ओ-ज़ब्त और कौमी यकजहती के साथ मिलकर मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालना चाहिए। म्यूनसिपल कमिश्नर आगा समीर खान दुर्रानी ने भी जश्न आज़ादी के मौके पर तमाम अफसरान, मुलाजमीन और शहरियों को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। तकरीब में अरकान कौंसल, बल्दियाती अफसरान और मुलाजमीन ने भरपूर शिरकत की और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से कौमी जज्बे का इज़हार किया। खबर शामिल करें और आपको बताएं, चेयरमैन मोरडो मीर बहर टाउन अली अकबर ने कहा कि आज हम इस बात का इरादा करते हैं कि अपनी जिम्मेदारियों की अंजाम दही को कोताही का अंसर भी ख़त्म करेंगे। मज़ीद तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में। मोरडो मीर बहर टाउन की जानिब से परचम कुशाई तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर चेयरमैन मोरडो मीर बहर टाउन अली अकबर का कहना था कि आज हम इस बात का आदा करते हैं कि अपनी जिम्मेदारियों की अंजाम दही में कोई कोताही का अंसर भी खत्म कर देंगे। कायदे आज़म के फरमान के मुताबिक काम काम और सिर्फ काम की आदत अपनाएंगे। परचम कुशाई की तकरीब में टाउन वाइस चेयरमैन शौकत बलोच और म्यूनसिपल कमिश्नर इलाही बख्श सयाल, अरकान कौंसल भी मौजूद थे। चेयरमैन अली अकबर ने इस बात का आज़म किया कि मैं और मेरे तमाम अफसरान मोरडो मीर बहर टाउन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, अवामी खिदमत के कामों में भरपूर हिस्सा लेकर एक टीम की तरह काम अंजाम देंगे। याद रहे, मोरडो मीर बहर टाउन में जश्न आज़ादी के हवाले से तकारीब का सिलसिला जारी रहा, जिसके सिलसिले में स्कूलों के असातिज़ा और तलबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जश्न आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से तकरीब में परचम कुशाई करते हुए मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए दुआएं की गई, जिसमें महकमा जाती अफसरान, स्कूलों के असातिज़ा और तलबात ने भी शिरकत की। टाउन चेयरमैन ने तलबा और तालिबात से कहा कि हम सबको अपने असातिज़ा की दी हुई तरबियत पर मुकम्मल अमल करना चाहिए। आखिर में असातिज़ा और तलबा और तालिबात में पाकिस्तानी परचम, मिठाई, तोहफ़े और इनामात तकसीम किए गए। टाउन चेयरमैन ने टाउन वाइस चेयरमैन, म्यूनसिपल कमिश्नर, अरकान कौंसल के हमरा बच्चों में पाकिस्तानी झंडे और झंडियाँ तकसीम की। इस मौके पर टाउन चेयरमैन ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि जश्न आज़ादी पुरजोश अंदाज में मनाने के लिए मोरडो मीर बहर टाउन के तमाम शाहराओं के अलावा मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तानी परचम, यूनियन कौंसलों और राउंड अबाउट्स में चिरागा और बिल्डिंग को बरक़ी खमखमों से सजाया गया है। खबर शामिल करें और आपको बताएं, टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नाज़माबाद टाउन और लियाकताबाद में जश्न आज़ादी जोशो जज्बे से मनाया गया। नाज़माबाद टाउन और लियाकताबाद टाउन के मरकजी दफ्तर में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नाज़माबाद और लियाकताबाद में जश्न आज़ादी जोश और जज्बे से मनाया गया। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नाज़माबाद और लियाकताबाद के मरकजी दफ्तर में परचम कुशाई के पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर चेयरमैन नाज़माबाद टाउन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर और चेयरमैन लियाकताबाद टाउन फराज हसीब ने म्यूनसिपल कमिश्नर अजीज़ और रहमान तीनों बल्दियाती अफसरान और मुलाजमीन के हमरा परचम कुशाई की। चेयरमैन नाज़माबाद टाउन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर और चेयरमैन लियाकताबाद टाउन फराज हसीब ने कौमी परचम फ़ज़ा में बुलंद किया तो कौमी तराना पढ़ा गया। परचम कुशाई के बाद जश्न आज़ादी की खुशी में केक काटा गया। इस मौके पर चेयरमैन नाज़माबाद टाउन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर ने पाकिस्तानी अवाम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि जिंदा कौमें अपना जश्न आज़ादी भरपूर अंदाज में मनाती हैं, क्योंकि आज़ादी रब्बुल इज़्ज़त की अता की हुई बैश बहा नेमत है। चेयरमैन लियाकताबाद टाउन फराज हसीब ने कहा कि हमें हमेशा अपने अकाबरीन और बुजुर्गों की कुर्बानियों को याद रखना चाहिए कि जिनकी जद्दोजहद और कुर्बानियों से पाकिस्तान माज़ वजूद में आया और आज हम एक आज़ाद मुल्क के आज़ाद शहरी हैं। वाज़ह है कि गुज़श्ता शब नाज़माबाद टाउन की
جانب سے جشن آزادی کے موقع پر ماہر القادری پارک میں ایک رنگا رنگ تقریب بھی رکھی گئی تھی، جس میں امیر الجماعت اسلامی ضلع وسطی سید وجی حسن، ڈپٹی سی ضلع وسطی تاج سلیم، چیئرمین ناظم آباد ٹاؤن سید محمد مظفر، وائس چیئرمین محمد نعمان صدیقی، اسسٹنٹ کمشنر ناظم آباد رابعہ سید، میونسپل کمشنر عزیز الرحمان تینو، یو سی چیئرمین، وائس چیئرمین، بلدیاتی افسران، ٹاؤن ملازمین، اساتذہ اور طلبہ طالبات اور علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ شب آزادی کے شاندار پروگرام میں پرچم کشائی، ٹیبل اور ملی نغمے اور شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا اور عمدہ کارکردگی پر بچوں کو تعریفی اسناد اور اعزازات سے نوازا گیا۔ اسی طرح گزشتہ شب لیاقت آباد ٹاؤن کی جانب سے بھی جشن آزادی کے موقع پر ڈاکخانہ چورنگی پر ایک رنگا رنگ تقریبات بھی رکھی گئی تھی، جس میں امیر جماعت اسلامی ضلع گلبرگ وسطی کامران سراج، چیئرمین لیاقت آباد ٹاؤن فراز حسیب، وائس چیئرمین اسحاق تیموری، یو سی چیئرمین، وائس چیئرمین، بلدیاتی افسران، ٹاؤن ملازمین، اساتذہ اور طلبہ طالبات اور علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن لیاقت آباد میں جشن آزادی کی خوشی میں کیک کاٹا گیا، پرچم کشائی کی گئی، ٹیبل اور ملی نغمے اور شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر چیئرمین لیاقت آباد ٹاؤن فراز حسیب کی جانب سے آب بیجیز اور مختلف قسم کی اقسام کی اشیاء جو کہ جشن آزادی کی مناسبت سے تھی وہ خواتین اور بچوں میں تقسیم کی گئیں۔ اس موقع پر بچوں کے چہروں پر فیس پینٹنگ کے ذریعے قومی پرچم بنائے گئے۔ خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں، چیئرمین نارتھ ناظم آباد ٹاؤن عاطف علی خان کی ہدایت پر شاندار آزادی تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ چیئرمین عاطف علی خان نے مختلف مقامات پر کیک کٹنگ تقریبات میں شرکت کر کے کیک کاٹنے پر پرچم کشائی کی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ چیئرمین نارتھ ناظم آباد ٹاؤن عاطف علی خان کی ہدایت پر جشن آزادی کی تقریبات قومی پرچموں کی بہار دیکھنے میں آئی۔ ہر طرف فضاؤں میں قومی نغموں کی صدائیں گونج رہی تھیں۔ چیئرمین نارتھ ناظم آباد ٹاؤن عاطف علی خان کی مصروفیت انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ کبھی کہیں جشن آزادی کا کیک کاٹنے کے لیے مدعو تھے۔ مختلف مقامات پر کیک کٹنگ تقریبات میں شرکت کر کے کیک کاٹا اور لوگوں کی خوشیوں کو اپنی شرکت سے دوبالا کیا۔ نارتھ ناظم آباد ٹاؤن کی جانب سے جیف کو گراؤنڈ میں منعقدہ جشن آزادی میلہ نے تو شہریوں کے دل جیت لیے، جہاں شہریوں کو لمبی لیڈرز کے خطابات کی بجائے جشن آزادی کی خوشیوں کو تفریح کے ساتھ منانے کا سامان موجود تھا۔ خوبصورت رنگوں قومی نغموں کی بہار تھی، فیملی کے ساتھ بچے بڑے سب انجوائے کر رہے تھے۔ اس موقع پر چیئرمین عاطف علی خان کا کہنا تھا، جشن آزادی ہمیں خوشیاں منانے کے ساتھ ان قربانیوں کی بھی یاد دلاتا ہے جس کی بدولت آج ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ ہمیں اس ملک اور آزادی کی قدر کرنی چاہیے۔ اس موقع پر وائس چیئرمین نارتھ ناظم آباد ٹاؤن ضیاء جامعی، امیر ضلع وجی حسن، ڈائریکٹرز اور شہریوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں، بلدیہ ٹاؤن کی جانب سے جشن آزادی پر پاک، ترکی اور سعودی عرب معاہدے پر آزادی کے جشن کو 4 چاند لگا دیے۔ بلدیہ ٹاؤن میں ہر طرف پاکستان، ترکی، سعودی عرب اور پرچموں کو بہار۔ تفصیل اس رپورٹ میں، مزید تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بلدیہ ٹاؤن میں جشن آزادی کے رنگ، پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے پرچموں کی بہار۔ صدر پی ایس 111 ٹاؤن چیئرمین بلدیہ عبدالکریم آسکانی کی ہدایت پر 14 اگست یوم آزادی کے سلسلے میں بلدیہ ٹاؤن کی مین شاہراہوں جن میں ختم نبوت روڈ، شاہراہ مارکا حق اور ابریور روڈ سمیت مختلف شاہراہیں شامل ہیں کو پاکستانی سبز پرچم سے سجا دیا گیا۔ ٹاؤن چیئرمین عبدالکریم آسکانی نے اراکین کونسل اور میونسپل کمشنر کے ہمراہ اپنی نگرانی میں ترکیہ، پاکستان اور سعودی عرب کے پرچم بھی اہم شاہراہوں پر آویزہ کرائے۔ علاقے میں وطن عزیز سے محبت، ملی جوش و جذبے اور پاک ترک دوستی کا خوبصورت منظر دیکھنے کو مل رہا تھا۔ حالیہ دنوں میں پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والے مشترکہ دفاعی معاہدے کے تناظر میں تینوں برادر اسلامی ممالک کے پرچم آویزہ کرنا اتحاد و یکجہتی کا پیغام ہے، جس سے پوری دنیا کو ایک واضح پیغام ملا ہے۔ ٹاؤن چیئرمین عبدالکریم آسکانی نے کہا کہ 14 اگست یوم آزادی بھرپور جوش و جذبے اور شان و شوکت کے ساتھ منایا جائے گا۔ خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں، بلدیہ ٹاؤن کی جانب سے پاکستان کے یوم آزادی پر شاندار ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ لیاقت علی اسکانی، ڈپٹی کمشنر کیماڑی عبدالستار، دیگر اور معزز شخصیات نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ 14 اگست 2026 کے موقع پر 79ویں یوم جشن آزادی کی مناسبت سے ٹاؤن میونسپل کارپوریشن بلدیہ اور ٹاؤن کے چیئرمین عبدالکریم آسکانی کی جانب سے بلدیہ ٹاؤن آفس سے اب ریور روڈ تک شاندار ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں رکن صوبائی اسمبلی لیاقت علی اسکانی، ڈپٹی کمشنر کیماڑی عبدالستار بکڑو، اسسٹنٹ کمشنر افشار ریکی، وائس چیئرمین بلدیہ ٹاؤن عجب خان سواتی، تنظیمی عہدیداران، اراکین کونسل، بلدیاتی نمائندگان، ٹی ایم سی بلدیہ ٹاؤن کے افسران و اسٹاف اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شرکا نے ہاتھوں میں پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کے پرچم اٹھا رکھے تھے اور پاکستان
पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद और पाकिस्तान हम सबका है के नारे लगाए। इस मौके पर पाक फौज, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स, सिंध रेंजर्स और सिंध पुलिस को खराज तहसीन भी पेश किया गया। इस मौके पर लियाकत अली आसकानी, अब्दुल सत्तार बकड़ो, अफशान रेकी, अब्दुल करीम आसकानी और रजब खान सवाती ने अपने खिताब में कहा कि जश्न आज़ादी हमें अपने बुजुर्गों के अजीम कुर्बानियों को याद करने और पाकिस्तान की कदम करने का दर्स देता है। इस मौके पर लियाकत अली आसकानी, अब्दुल सत्तार बकड़ो, अफशान रेकी, अब्दुल करीम आसकानी और रजब खान सवाती ने अपने खिताब में कहा कि जश्न आज़ादी हमें अपने बुजुर्गों की अजीम कुर्बानियों को याद करने और पाकिस्तान की कदर करने का दर्स देता है। 14 अगस्त 1947 वो तारीखी दिन है जब बड़े सगीर के मुसलमानों की तवील जद्दोजहद और बेमिसाल कुर्बानियों के नतीजे में पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से वजूद में आया। रैली में पाकिस्तान और बरादर इस्लामी ममालिक के दरमियान दोस्ती, इत्तेहाद और भाईचारे के अज़्म का भी इज़हार किया गया। आज का दिन तजदीद अहद वफा का दिन है। हम जितने पाकिस्तानी हैं और जितने भी जिंदा कौम पाकिस्तानी हैं 14 अगस्त को एक पुरवकार तरीके से मनाते हैं और बल्दिया टाउन की आवाम में भी यही जोश व खरोश पाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ पाकिस्तान के परचम की बहारें हैं और हर तरफ पाकिस्तानी लोग निकल कर पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। इसमें मैं हमारे साथ MPA डिस्ट्रिक्ट के सदर जनाब लियाकत अली आसकानी साहब का शुक्रिया अदा करूँगा। मैं शुक्रिया अदा करूँगा हमारे DC के हमारी जनाब अब्दुल सत्तार अकड़ो साहब का और मैडम AC साहिबा, अफशान रेकी साहिबा और मेरे साथ टाउन के जितने मेंबरान हैं, टाउन के वाइस चेयरमैन अजब खान स्वाति साहब और तमाम मेंबरान हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। इसके टाउन के मुलाजमीन यहाँ पर मौजूद हैं और पीपल्स पार्टी के वर्कर मौजूद हैं। इन्होंने बड़ी तादाद में आज इस रैली में शिरकत करके साबित कर दिया कि जिंदा कौमें हमेशा इसी तरह मिसाली तौर पर अपना जश्न आज़ादी मनाती हैं। आज 14 अगस्त का दिन है, खुशी का दिन है। तमाम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद पेश करते हैं और आज ये दिन पूरे पाकिस्तानी शायाना शान तरीके से मना रहे हैं और हमारी खुशी जो है यही दिन का इंतज़ार होता है पूरे साल और तमाम पाकिस्तानी आज जो है मुत्तहिद है, मुत्तफिक है और अपनी पाक फौज पर, अपने मुल्क पर हमें फ़ख्र है। टाउन चेयरमैन साहब का, लियाकत अस्कानी साहब का, DC साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ। उन लोगों ने एक ज़बरदस्त, चेयरमैन साहब ने ये रैली अरेंज की है। हम इंशाल्लाह भरपूर काम करेंगे बल्दिया टाउन के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं जनाब लियाकत आसकानी साहब, MPA साहब का, जनाब अब्दुल करीम आसकानी चेयरमैन का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यौम आज़ादी इस तरीके से पुरवकार तकरीब उन्होंने अरेंज की और बल्दिया के अवाम को ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान हम सब का है और कल पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है और सब मिलकर इस दिन को खूब ईद की तरह मनाएं। हम सभी अहद करते हैं कि हम अपने मुल्क के तरक्की और खुशहाली के लिए रात दिन काम करेंगे और जिस तरह का जोश व खरोश इस 14 अगस्त को है, शायद इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि हर जगह पर रैलियाँ हैं, हर जगह पर खुशियाँ हैं, जैसे ईद का समय है और हमारे KPK से लेकर बलूचिस्तान तक लोग सड़कों पर हैं, रैलियाँ निकाल रहे हैं और पाकिस्तान और पाक फौज के हक में नारेबाजी हो रही है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और बात करें मोमनाबाद टाउन में जश्न आज़ादी पाकिस्तान के सिलसिले में टाउन चेयरमैन मलिक आरिफ ऐवान की ज़ेर सदारत शानदार और पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मोमनाबाद टाउन में जश्न आज़ादी पाकिस्तान के सिलसिले में टाउन चेयरमैन मलिक आरिफ ऐवान के ज़ेर सदारत शानदार और पुरवकार तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिसमें म्यूनसिपल कमिश्नर असगर अली, कोऑर्डिनेटर मेराज शाह, फोकल पर्सन खिज़र अय्यार, टाउन के अफसरान और मुलाज़मीन, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और आवाम ने भरपूर शिरकत की। 14 अगस्त की सुबह आफाक खान शाहिद पार्क के बाहर कायम जश्न आज़ादी कैंप में जश्न का बाकायदा आगाज़ किया गया। इस मौके पर केक काटा गया और शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। शहरियों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों के साथ वतन अजीज से अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया। टाउन ऑफिस में बाकायदा परचम कुशाई की गई। परचम कुशाई चेयरमैन मलिक आरिफ ऐवान ने कौमी परचम लहराकर की। बाद कौमी तराना बजाया गया। चेयरमैन मलिक आरिफ ऐवान ने कहा कि पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों की लाजवाल कुर्बानियों का समर है। हमें आज़ादी की कदर करते हुए मुल्क की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। मोमनाबाद टाउन में आफाक खान शाहिद पार्क के बाहर रात गए जश्न आज़ादी कैंप से शुरू होने वाली तकरीबात से लेकर सुबह टाउन ऑफिस में परचम कुशाई तक पूरा माहौल कौमी जोश, जज्बे, हुब्बुल वतनी और पाकिस्तान से वालाना मोहब्बत से मामूर रहा। खबर शामिल करें और आपको बताएं, टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गुलबर्ग में यौम आज़ादी पाकिस्तान शाया शान तरीके से मनाया गया। इस सिलसिले में गुलबर्ग टाउन के मरकजी दफ्तर में एक सादा पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन गुलबर्ग में 79वां यौम आज़ादी पाकिस्तान शायाना शान तरीके से मनाया गया। इस सिलसिले में गुलबर्ग टाउन का मरकजी दफ्तर में एक सादा पुरवकार कौमी जज्बे से सरशाद तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह, म्यूनसिपल कमिश्नर हुमैन अहमद, साबका टाउन नाजिम फारूक नेमतुल्लाह समेत तमाम महकमा जाती अफसरान और मुलाजमीन ने शिरकत की। इस मौके पर कौमी परचम लहराया गया और मुल्क की सलामती, तरक्की व खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं भी की गईं। चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह ने यौम आज़ादी के मौके पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों के अजीम जद्दोजहद और लाजवाल कुर्बानियों का समर है। म्यूनसिपल कमिश्नर हुमैन अहमद ने तमाम अफसरान और मुलाजमीन और कौम को 79वां यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। तकरीब के अख्तिताम पर पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खसूसी दुआ की गई। साथ ही गुलबर्ग टाउन के तमाम स्कूलों में जश्न आज़ादी के मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया, जिसमें स्कूल के तलबा और तालिबात ने मिली नगमे टेबलो पेश किए और असातिज़ा ने उन्हें आज़ादी का मकसद और शहीदों की लाजवाल कुर्बानियों से आगाह किया। खबर शामिल करें और आपको बताएं, लांडी टाउन के चेयरमैन अब्दुल जमील खान ने यौम आज़ादी के मौके पर मरकजी दफ्तर में परचम कुशाई, जबकि तालीम लांडी टाउन के ज़ेर एहतमाम जश्न आज़ादी की तकरीब में शिरकत की, जहां केक कटिंग और परचम कुशाई की गई। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन लांडी में पाकिस्तान का 79वां यौम आज़ादी के मौके पर परचम कुशाई की तकरीब मुनक्किद की गई। चेयरमैन लांडी टाउन अब्दुल जमील खान ने परचम कुशाई की, जबकि महकमा तालीम लांडी टाउन के ज़ेर एहतमाम जश्न आज़ादी की तकरीब में भी शिरकत की, जहां केक काटा और परचम कुशाई की। तकरीब में तलबा तालिबात ने मिली नगमे टेबलोज और तकारीर पेश की और वतन से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। तकरीब से TMC मोहम्मद नवाज खान महर और डायरेक्टर एजुकेशन फाद अब्बासी के हमरा खिताब करते हुए अब्दुल जमील खान ने कहा कि आज़ादी एक अजीम नेमत और हमारे बुजुर्गों की लाजवाल कुर्बानियों का समर है। चेयरमैन लांडी टाउन ने मजीद कहा कि हमें अपने तमाम इख्तिलाफात को बाला ताक रखते हुए पाकिस्तान की सरबुलंदी, कौमी यकजहती, मुल्क की तरक्की के लिए मुत्तहद होना होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की नई नस्ल हमारा कीमती सरमाया है। मुल्क को मजीद मजबूत और तरक्की याफ्ता बनाने में हम सबको अपना किरदार अदा करना है। मजीद खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबर शामिल करें और आपको बताएं, यौम आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खास खेली ने वाइस चेयरमैन अब्दुल हक बलोच, म्यूनसिपल कमिश्नर आलमगीर जुनेजो, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला शर्की इकबाल सान समेत अफसरान मुलाजमीन ने बड़ी तादाद में स्कूल के बच्चों और आवाम के हमरा सर्चल ग्राउंड में परचम कुशाई की। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौके पर सफूरा टाउन में तकरीब परचम कुशाई का इनेकाद किया गया। परचम कुशाई की तकरीब में सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला शर्की के सदर इकबाल सान, वाइस चेयरमैन अब्दुल हक बलोच, म्यूनसिपल कमिश्नर आलमगीर जोनीजो समेत अफसरान और मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदगान ने शिरकत की। चेयरमैन राशिद खास खली ने मौजूद मेहमानों के हमरा परचम कुशाई की। इकबाल सान का कहना था, सफूरा टाउन की जानिब से यौम आज़ादी के हवाले से मुनक्किदा प्रोग्राम में आवाम का जोश व काबिल सताइश है। चेयरमैन राशिद खास खली ने कहा कि आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदर वही जानते हैं जो इससे महरूम हैं। पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हैं। वाइस चेयरमैन अब्दुल हक बलोच ने कहा कि हर एक अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करे तो पाकिस्तान की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। मज़ीद आगे बढ़ें और आपको बताएं, जश्न आज़ादी पाकिस्तान के मौका पर टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मंगोपीर ज़ेर एहतमाम टाउन ऑफिस में एक शानदार पुरवकार मिली जज्बे से सरशार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें चेयरमैन टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मंगोपीर हाजी नवाज अली ब्रोही और म्यूनसिपल कमिश्नर आगा खलीक, वाइस चेयरमैन राना मोहम्मद आरिफ, टाउन के अफसरान, कौंसल मेंबरान और दीगर मुलाजमीन ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। जश्न आज़ादी पाकिस्तान के मौके पर टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मंगोपीर के ज़ेर एहतमाम टाउन ऑफिस में एक शानदार पुरवकार और मिली जज्बे से सरशार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें चेयरमैन टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मंगोपीर हाजी नवाज अली बरोई, म्यूनसिपल कमिश्नर आगा खालिक, वाइस चेयरमैन राना मोहम्मद आरिफ, टाउन के अफसरान, कौंसल मेंबरान और दीगर मुलाजमीन ने शिरकत की। इस मौके पर वतन अजीज के दिफा सलामती के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा और पाक फौज के बहादुर जवानों को खराज अकीदत पेश किया गया। चेयरमैन हाजी नवाज अली बरोई ने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों की बेमिसाल जद्दोजहद,
लाजवाल कुर्बानियों और अज़्म हौसले का समर है। चेयरमैन नवाज अली बरोई ने नौजवान नस्ल को मुखातिब करते हुए कहा कि नौजवान पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल है। उन्हें तहरीक पाकिस्तान की तारीख, अपने बुजुर्गों की कुर्बानी और आज़ादी की हकीकी कदर और कीमत को समझना होगा। तकरीब के अख्तिताम पर पाकिस्तान से मोहब्बत, कौमी यकजहती और वतन से वफादारी के इज़हार के लिए एक पुरजोश रैली भी निकाली गई। रैली में चेयरमैन हाजी नवाज अली बरोई, वाइस चेयरमैन राना मोहम्मद आरिफ, म्यूनिसिपल कमिश्नर खलीक, टाउन के अफसरान, कौंसल मेंबरान और दीगर शरका ने कौमी परचम थामे शिरकत की। जश्न आज़ादी की इस पुरवकार तकरीब में सब जिलाली परचमों की बहार, मिली नगमों, कौमी नारों और शरका के जोश और जज्बे ने टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मंगो पीर के माहौल को बुलवतनी की कैफियत से सरशार कर दिया। तकरीब के अख्तिताम पर शरका ने इस अज़्म का इज़हार किया कि वह पाकिस्तान की सलामती, खुद मुख्तारी, तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए अपनी जिम्मेदारियाँ भरपूर अंदाज में अदा करते रहेंगे। खबर शामिल करें और आपको बताएं, अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी मिली और रोटी क्लब की जानिब से योम आज़ादी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें परचम कुशाई और पौधे भी लगाए गए। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। खबर शामिल करें और आपको बताएं, गडाफ टाउन की जानिब से योम आज़ादी की तकरीब पर परचम कुशाई का इनेकाद किया गया। चेयरमैन तारिक अजीज़ बलोच ने परचम कुशाई की। चेयरमैन तारिक अजीज़ बलोच का कहना था कि मैं पूरी कौम को जश्न आज़ादी की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन गडाफ में 79वें जश्न आज़ादी पाकिस्तान के सिलसिले में एक पुरवकार और कौमी जज्बे से सरशार मरकजी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में चेयरमैन तारिक अजीज़ बलोच, म्यूनिसिपल कमिश्नर मलिक मुश्तबा अयाज, अफसर मालियात इफ्तिखार हुसैन, पार्लिमानी लीडर कौंसल मेंबर में मीर अब्बास टालपुर, कौंसल मेंबर दानिश बरफ, कौंसल मेंबर ईसा बलोच और दीगर अफसरान और मुअज़्ज़िज़ीन ने भरपूर शिरकत की। तकरीब का आगाज़ परचम कुशाई से किया गया। इस मौके पर कौमी तराने की गूंज में शरका ने वतन से अपनी मोहब्बत और वफादारी का इज़हार किया। बाद 79वें जश्न आज़ादी की खुशी में केक काटा गया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इस मौके पर चेयरमैन तारिक अजीज़ बलोच ने कहा कि मैं पूरी कौम को जश्न आज़ादी की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। 14 अगस्त हमारे कौमी सफर का एक अजीम और तारीखी दिन है। ये दिन हमें इन अजीम कुर्बानियों की याद दिलाता है। म्यूनिसिपल कमिश्नर मलिक मुश्तबा अयाज ने कहा कि मैं कौम को 79वां यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज़ादी एक अजीम नेमत है जिसकी कदर करना हम सबकी कौमी जिम्मेदारी है। तकरीब के इख्तिताम पर पाकिस्तान की सलामती के लिए खसूसी दुआ की गई। इस मौके पर शरका ने इस अज़्म का इज़हार किया कि वतन अजीज पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी, खुलूस और कौमी जज्बे के साथ अदा करते रहेंगे। खबर शामिल करें और आपको बताएं, 14 अगस्त की सुबह मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के योम आज़ादी के मौका पर सदर टाउन के मरकजी दफ्तर में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। कमिश्नर अमार खान ने वाइस चेयरमैन अब्दुल रहमान मोतीवाला के हमरा परचम कुशाई की। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। 14 अगस्त की सुबह मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान 79वें यौम आज़ादी के मौके पर सदर टाउन के मरकजी दफ्तर में परचम कुशाई के पुरवकार और रंगारंग तकरीब मुनक्किद की गई। म्यूनिसिपल कमिश्नर अमार अहमद खान ने वाइस चेयरमैन अब्दुल रहमान मोतीवाला के हमरा परचम कुशाई की। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर सदर टाउन अमार खान ने कहा है कि यौम आज़ादी का दिन हमसे यकजहती, इत्तेहाद और जहद मुसलसल का तकाजा करता है। आइए सब मिलकर अहद करें कि बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के रहनुमा उसूलों पर चलते हुए अपने वतन अजीज की तामीर और तरक्की के लिए अपने फ़राइज़ पूरी दियानत और ईमानदारी से अंजाम देंगे। मुल्क की सालमियत, इस्तेहकाम, अमन और अमान, भाईचारे के फरोग के लिए आपस के तमाम इख्तिलाफात को खत्म करके पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए मुश्तरका जद्दोजहद करेंगे। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने सदर टाउन ऑफिस में परचम कुशाई के मौके पर किया। तकरीब परचम कुशाई के मौके पर टाउन वाइस चेयरमैन अब्दुल रहमान मोतीवाला, टाउन अराकीन कौंसल, डायरेक्टर एडमिन मोहम्मद रईसी समेत महकमा जाती अफसरान, अमले, मुअज़्ज़िज़ शहरियों और तलबा तालबात की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। परचम कुशाई के बाद कौमी तराना पढ़ा गया और कौमी परचम लहराया गया, जिसके बाद वतन अजीज की सालमियत, खुशहाली और तरक्की के लिए खसूसी दुआ कराई गई। इस मौके पर स्कूल के बच्चों ने मिली नगमे टेबलो पेश किए। तलबा व तालबा को मुखातिब करते हुए टाउन वाइस चेयरमैन अब्दुल रहमान मोतीवाला का कहना था कि आप कौम का मुस्तकबिल और असल मेमार हैं। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर अमार खान ने तलबा व तालबात में कौमी परचम, बैजेस, मिठाई और जूस भी तकसीम किए। वाज़ेह रहे कि डिस्ट्रिक्ट टाउन इंतजामिया ने यौम आज़ादी के मौके पर मरकजी ऑफिस समेत मुख्तलिफ चौराहों, ग्रीन बेल्ट, सेंट्रल आइलैंड्स और मोनूमेंट्स को रंगारंग झंडियों, गुब्बारों और बरकी कमकमों से सजाया है, जो निहायत खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। खबर शामिल करें और आपको बताएं, चेयरमैन सदर टाउन मंसूर अहमद शेख ने जश्न आज़ादी पर कौम के नाम पैगाम में कहा। पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि हम एक आज़ाद वतन के शहरी हैं जो कई कीमती जानों के लाजवाल कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
चेयरमैन सदर टाउन मंसूर अहमद शेख ने पाकिस्तान का 79वां यौम आज़ादी के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि हम एक आज़ाद वतन के शहरी हैं जो कई कीमती जानों की लाजवाल कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ है। इस पाक वतन की हिफाजत हमारी कौमी जिम्मेदारी है, इसकी बका ही हमारी सलामती की जामिन है। हमारा फर्ज है कि पाकिस्तान के असूल के लिए हमारे बुजुर्गों की बेमिसाल कुर्बानियों को नई नस्ल के सामने मौसर अंदाज से उजागर करें ताकि हमारी नौजवान नस्ल जो कौम का मुस्तकबिल और मेमार है अपने असलाफ के नक्श कदम पर चलते हुए एक नए जज्बे से मुल्क की तामीर और तरक्की और खुशहाली के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर सकें। दरअसल सदर टाउन इंतजामिया की जानिब से जश्न आज़ादी की तकरीबात का इनाकाद किया गया। सदर टाउन के मुख्तलिफ अहम मकामात पर पाकिस्तानी झंडे, जश्न आज़ादी की मुबारकबाद के बैनर्स और स्टीमर्स आवेज़न किए गए हैं। इसके अलावा मरकजी दफ्तर समेत मुख्तलिफ इमारतों और राउंड अबाउट्स पर चिरागा लाइटिंग के इंतजाम किए गए हैं। 14 अगस्त के मौके पर मरकजी दफ्तर में कौमी तराना और परचम कुशाई की तकरीब, स्कूल के बच्चों का मिली नगमों का प्रोग्राम और स्कूलों के बच्चों में कौमी झंडे, बैजेस और मिठाई तकसीम की गई। खबर शामिल करें और आपको बताएं जश्न आज़ादी के मौके पर मेट्रो वन न्यूज़ की जानिब से केक कटिंग की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मेट्रो वन न्यूज़ के डायरेक्टर अमीर अली चांडियो, राना इकबाल, मेट्रो वन न्यूज़ के रिपोर्टर हफीज़ अंसारी और दीगर ने शिरकत की। तकरीब में वतन अजीज़ से मोहब्बत और आज़ादी की खुशियों का इजहार किया गया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सैयदा दिशा बतूल और आज हम सब यहाँ मौजूद हैं जश्न आज़ादी की खुशियाँ सेलिब्रेट करने के लिए। ये एक ऐसा दिन है जिसमें हर पाकिस्तानी का खून जो है वो दहकने लगता है और अपने जोशो जज्बे का इजहार करने लगता है। आज हम सब यहाँ में मौजूद हैं ना सिर्फ आज़ादी की सेलिब्रेशन के लिए बल्कि उन तमाम लोगों को खराज तहसीन पेश करने के लिए जिन्होंने पाकिस्तान की तरक्की में अपना अपना किरदार अदा किया है। और मेट्रो वन न्यूज़ भी कहीं भी पीछे नहीं रहा है, पल पल की आपको तक जो है वो खबरें पहुंचाता रहा है पाकिस्तान की तरक्की की, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए और पाकिस्तान की जदोजहद में जिन जिन लोगों ने अपना किरदार अदा किया है, मेट्रो वन न्यूज़ ने आप तक वो हर खबर पहुंचाई है सच्चे दिल के साथ। इस खुशी के मौके पे हम सब आपके साथ मौजूद हैं और हम लोगों ने मेट्रो वन न्यूज़ ने एक छोटी सी तकरीब मुनक्किद की है केक कटिंग सेरेमनी के लिए। और इस केक कटिंग के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे डायरेक्टर अमीर अली चांडियो साहब और हमारे साथ मौजूद हैं राना इकबाल साहब। मुल्क भर की तरह मेट्रो वन न्यूज़ की जानिब से जश्न आज़ादी भरपूर जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में केक कटिंग की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें मेट्रो न्यूज़ के डायरेक्टर अमीर अली चांडियो, राना इकबाल, रिपोर्टर हफीज अंसारी समेत दीगर ने शिरकत की। तकरीब के दौरान पाकिस्तान की आज़ादी की खुशी में केक काटा गया और मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआ की गई। शुरा ने इस अज़म का इजहार किया कि वतन अजीज की तरक्की और खुशहाली के लिए हर फर्द को अपना किरदार अदा करना होगा। जश्न आज़ादी के मौके पर शुरा ने कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाकिस्तान हमारी पहचान और हमारा फख्र है, हमें अपने मुल्क की तरक्की, हम और खुशहाली के लिए मुत्तहद होकर किरदार अदा करना चाहिए। सबसे पहले तो पूरी कौम को जश्न आज़ादी मुबारक हो। और आज़ादी एक नेमत है, ये उन लोगों से पूछा जाए जो आज़ाद मुल्क नहीं है। ये है कि पाकिस्तान के लिए मैं तमाम अहले वतन को यही कहता हूँ कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए आगे कदम बढ़ाएं और पाकिस्तान का साथ दें। मैं सिर्फ एक बिल्कुल मुख्तसर सा मैसेज दूंगा कि आज़ादी की कदर करो और आज़ादी के लिए मेहनत करो। इसके लिए यकीनन जो है अमीर चांडियो साहब और राना इकबाल साहब और पूरा स्टाफ शाना बशाना खड़ा रहे। तो आज ये दिन आया है कि हम इस पाकिस्तान की यौम आज़ादी की खुशियों को मिलकर हमेशा की तरह हर साल की तरह रिवायती तौर पर यहाँ पर केक काट रहे हैं। को यही पैगाम देना चाहूँगी कि एक दूसरे के साथ रहें, मिलजुल के रहें और इस आज़ादी में एक दूसरे का साथ दें। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज़ादी हासिल करना बहुत ही मुश्किल है और जिस तरह हमारे बड़े और बुज़ुर्गों ने जो कि है वो कुर्बानियाँ दे के ये पाकिस्तान हासिल किया, तो हमें अपने पाकिस्तान की कदर करनी चाहिए और आज़ादी को आज़ादी के तौर पर ही मनाना चाहिए। बिल्कुल, मतलब हम सबका यही कहना है कि बिला तफरीक होके हम सबको अपना अपना पार्ट अदा करना है और आज़ादी की जो एक जिद्दोजहद चली आ रही है, एक हम सब की जो है वो अनथक मेहनत है, इन सब में अपना अपना आपको काम किरदार अदा करना है। लेकिन इस आज़ादी के साथ हम ये नहीं भूल सकते कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने हमें आज इस मकाम पे ला खड़ा किया है कि हम सफारती महाज में भी हमने कामयाबी हासिल की और लोग हमें आज पाकिस्तान एक अच्छे मुल्क की तरह से नहीं बल्कि एक सफारती महाज में भी कामयाब मुल्क के नाम से जो है वो याद करते हैं। तकरीब के अख्ताम पर शुरा ने एक दूसरे को जश्न की मुबारकबाद दी और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों के साथ वतन से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। क्लोजिंग की तरफ जाते हैं और मैं आप सबसे यही कहूंगी बिला तफरीक होके
पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा करते रहिए, खिदमत करते रहिए। ये नहीं सोचें कि उसने नहीं किया तो हम क्यों ना करें, हमें जरूर करना है, क्योंकि हम सबको आखिरी दफा एक नारा लगाना है, पाकिस्तान जिंदाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहें Metro One न्यूज़।